Wapsi. These two words have dominated our headlines. For Hindutva groups, it's about bringing back Christians and Muslims into the original Hindu fold. The problem is many Hindus disagree. Many Hindus point out that as Hindus, they've never had a sense of home or belonging. They want to know why Hindutva groups are not instead focusing on the real issues of caste and untouchability. Meerut on a cold and foggy winter morning. We're on our way to Jamalpur village where 10 families of the Valmiki caste have said they will convert to Islam as Hinduism discriminates against them. मेरा नाम सोनू है जी, गांव जमालपुर गोमा के स्थायी निवासी हैं। हम वाल्मीकि समाज के लोग हैं। हमारे साथ जो दुराचार हो रहा है, बलैनी गांव में हमारा वाल्मीकि आश्रम है। हमें वहां पर लोग पूजा नहीं करने देते। इसके लिए हिंदू समाज क्या कहता है? हमारा मानना ये है कि अगर हमारी पूजा नहीं होती तो हम हिंदू धर्म छोड़कर मुसलमान धर्म कबूल करेंगे। क्यों? इसलिए जब हिंदुओं में मान्यता नहीं रही तो फिर मुसलमानों में जाएंगे और क्या। कम से कम वहाँ ऊंच नीच छोटा बड़ा तो नहीं है। एक साथ सब लोग नमाज अदा करते हैं, खाते पीते हैं, एक साथ रहते हैं। उनमें कोई छोटा बड़ा नहीं है। At a time when debates on conversion and reconversion are part of daily chatter in western Uttar Pradesh, this dramatic announcement has caused a local stir, with channels arriving in droves to interview the families. हम किसी संगठन से नहीं, हम तो केवल हिंदू हैं, वाल्मीकि समाज से अपने जुड़े हुए हैं बस। हमारा कोई राजनीति मुद्दा नहीं है, ना तो कोई हमें किसी चीज़ से कोई लगाव है। हमारी सिर्फ पूजा का लगाव है बस। सुनो, आप क्या करते हैं? जी, गांव में रहते हैं, दिहाड़ी मजदूरी छोटे मोटे काम करते हैं, गरीब आदमी हैं और क्या करते हैं। घर में कितने लोग हैं? घर में 10 लोग हैं जी। 10 जी। तो कह रहे हैं आप पूरे 10 लोग जो हैं वो इस्लाम कबूल कर लेंगे। 10 परिवार है हमारे। हाँ जी, कम से कम 70-80 लोग हैं उनमें। The desire to convert may not be serious, but the anger is, and the reason for it lies 30 kilometers away on the outskirts of Meerut in Bagpat district. The Valmiki families of Jamalpur say they've not been allowed to pray at this temple complex, the Valmiki Ashram, said to be the place where sage Valmiki lived and wrote the Ramayana. According to the Valmiki Ramayana, when Lord Ram asked Sita to prove her innocence, humiliated, she took refuge in this place where she gave birth to her sons Love and Kush. For the Valmiki community, this is the heart of their sacred geography. They worship sage Valmiki as both their ancestor and a god. The Mahant, the head priest of the temple, is from the dominant Yadav community and is dismissive of the Valmiki's connection to the ashram. तो वाल्मीकि कौन थे? वाल्मीकि कहने के मतलब उनका तो ये हो गया, वाल्मीकि थे तो उनके जितने वाल्मीकि समाज के उनका ही मंत्र माना जाएगा। ऐसा तो नहीं हो सकता। जिस गांव के, जिस लोगों के हाथ में पूर्व काल से चलता आ रहा है और वो रखवाली और देखभाल करते आ रहे हैं, तो वो लोग कैसे उसको बिगाड़ रहे हैं क्या? या यहाँ कुछ उसका उन्हें किसी को रोका जा रहा है? ऐसा तो यहाँ हो नहीं रहा, ना रोका गया। The Mahant says the Valmikis are allowed to worship but have been refused permission by the administration to lead processions at Valmiki Jayanti, the birth anniversary of sage Valmiki. The Valmikis on their part accuse the Mahant and his community, the Yadavs, of capturing the temple complex, as both the money that pours in from pilgrims and the land around it is lucrative. Over the decades, the dispute has become a caste conflict between the Valmikis, who are Dalits, and the dominant Yadav OBCs. Here's an example of the rhetoric. वाल्मीकि नाम से हम वाल्मीकि हो गए। ये गांधी जी ने वाल्मीकि की कहाँ से उत्पत्ति हुई थी? वाल्मीकि रत्नाकर थे। रत्नाकर से उन्हें भगवान तो ब्रह्मा की तपस्या करने के बाद ब्रह्मा जी ने उन्हें उपाधि दी थी वाल्मीकि ऋषि की, क्योंकि मीक कहते दीमक को, और दीमक जिनके शरीर पे चढ़ गई तो ब्रह्मा जी ने कहा था उठो बस, आज से तुम वाल्मीकि नाम से जाने जाओगे। अब ये या कहने लगे, गांधी जी ने 2 शब्द दिए थे 47 से पहले, कि हरिजन एक शब्द दिया था कि छूतपात को मिटाने के नाम से, और वाल्मीकि कोई संतान नहीं हुई, जैसे भरद्वाज है, अंगरागत गोत्र है, ये कश्यप ऋषि है, फलाने ऋषि है। ये ऋषियों के नाम पे सब लोगों की संतानें थी, ऋषि थी, पत्नियां थी। वाल्मीकि कोई पत्नी भी नहीं थी, क्योंकि वो छोड़ करके ऋषि बने थे, तो उनका कोई गोत्र ही नहीं रहा था। अब गांधी जी ने इनको वाल्मीकि आदि जमादार भील संगा संजायते दोषा। For the Mahants, the Valmikis are upstarts trying to climb the caste hierarchy, a mobility he attributes to Gandhi. He refers to them as jamadars, a term that describes their caste profession as those of sweepers and scavengers, a term that the community finds offensive.
Premnath Dhingra, Dalit activist and aspiring politician, says the ashram issue could become a rallying point for his community, which otherwise lacks both social and political power. समाज का इस्तेमाल इसलिए कारणों से होता चला आ रहा है कि हमें शंकर भगवान के नाम पे, राम जी के नाम पर, भाजपा के नाम पे, हिंदू के नाम पे, सनातन धर्म के नाम पर हमें एक प्रलोभन या एक कहना चाहिए एक कम्युनिटी के वो पूरी तरह से इस्तेमाल किया जाता है। उस पूरी तरह से इस्तेमाल करके हमारा वोट तो हासिल कर लिया, लेकिन हम जब उनसे विकास के रूप में मांगते हैं कि हमारे बच्चों को एजुकेशन दो, हमारे बच्चों को आप हाईली एजुकेशन दो, हमारे बच्चों को बड़ी नौकरियों में मदद करो लगाने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। Dhingra's frustration has a history. For decades now, Hindutva groups have worked hard to bring alienated Dalit and OBC groups into their fold to create a consolidated Hindu political vote bank. In the process, using epics like the Ramayana and the Mahabharata to great effect. Shabri, the untouchable woman who fed Ram, was invoked to rally the tribal and Dalit communities. Nishad, the boatman who ferried Ram across the river, was deified to win the votes of the boatman Malla community. And Valmiki temples across the country work to Hinduize scavengers and sweepers. वाल्मीकि समाज 8.5% है। हमने सभी ने भाजपा को वोट किया और ये सोच के क्या शायद ये हमारे समाज के परिवर्तन का कुछ कारण बनेगा, लेकिन इस 6-7 महीने के इस सरकार के प्रदर्शन ने हमें निराश ही किया है। अब देखिए, हिंदुओं के सबसे बड़े ठेकेदार बनती है आरएसएस, उसके मोहन भागवत जी। अब मोहन भागवत जी जब सनातन धर्म की जातियों के एकमात्र ठेकेदार बन कर आए, अब बताएं मुझे, क्या उनके अपने घर में, उनके अपने समाज में जाति प्रथा को खत्म करने के लिए उन्होंने क्या काम किया है? जिस जाति से मैं आता हूँ, वाल्मीकि जाति से आता हूँ, ये हमारी जाति के उत्थान के लिए मोहन भागवत जी बताएं, प्रधानमंत्री जी बताएं, क्या कार्य कर रहे हैं आप? इस झाड़ू लगाने वाली जाति के लिए, इस सफाई करने वाली जाति के लिए आपके पास उत्थान के क्या प्रोग्राम है? आप हरे पत्ते तोड़ के पेड़ के झाड़ू पकड़ के फोटो खिंचवाना तो यकीन रखते हैं, विश्वास करते हैं। अब मेरा ये प्रश्न है, मोदी जी मुझे बताएं, सेफ्टी टैंक में कब घुसेंगे? जहाँ 27,000 गरीब वाल्मीकि जाति के लोग अपनी जान गंवा देते हैं, नाले में कब घुस के सफाई करेंगे? अब इतने सारे बड़े बड़े ग्लव्स पहन के सचिन तेंदुलकर जी पाउडर छिड़क कर सफाई करते हैं, क्या इतने बड़े बड़े ग्लव्स आज तक किसी सरकार ने किसी वाल्मीकि को सफाई करने के लिए उपलब्ध कराए? नहीं। हम लोग तो आज भी नंगे हाथों से करते हैं, सफाई करते हैं। वही सारा दशा है हमारी, यही सारा कारण है। और रही बात धार्मिक भावना, तो धार्मिक भावना हमारे ठेकेदार नहीं है। मोहन भागवत जी, नरेंद्र मोदी जी वाल्मीकि समाज के, दलित समाज के ठेकेदार नहीं है। हम इनके वर्ण के मुताबिक हम चौथे वर्ण में आते हैं, तो चौथा वर्ण तो ये दास बनाने के लिए रखते हैं। ये तो दास चाहते हैं हमें कि हम इनकी साफ सफाई करें, इनकी सेवा करें। घर वापसी क्या होती है? घर वापसी का क्या कारण होता है? घर वापसी का कारण वो होता है कि आपने किसी शूद्र को, इनके मुताबिक किसी शूद्र को, जिसने इस्लाम कबूला या जिसने ईसाईयत कबूली या जिसने बौद्ध धर्म कबूला, उसे ये लोग वापस धर्म में लाए। अल्लाह कर इन्होंने ब्राह्मण वर्ग में उसकी जगह बनाई, उसका स्थान बनाया, लेकिन ये तो वापस लाके उसी शूद्र समाज में उसे भेज रहे हैं। तो मेरा तो उनके कहना कि घर वापसी की आवश्यकता नहीं, आप वहाँ सम्मानित होते हो। हिंदू समाज में, सनातन धर्म समाज में आप सम्मानित नहीं होंगे। Angry questions that may not lead to a political movement but are gaining a significant ground. More so given the appalling conditions the Valmiki community live and work in. These are the government quarters of the Safai Karamchari, those who sweep the streets, clean the city's gutter and sewage systems. Almost all of those employed by the municipal corporation for this work come from the Valmiki caste. ये बिल्डिंग नगर निगम मेरठ की है। अब इस बिल्डिंग में हम इतनी तकलीफ में जीवन जी रहे हैं कि ये 1975 में ये बिल्डिंग बनी थी, और उसके बाद आज तक हम लगातार बात करते रहे, लगातार कहते रहे कि हमारी इस बिल्डिंग को दोबारा से बनाया जाए, लेकिन सुनने के लिए तैयार नहीं है, जानने के लिए तैयार नहीं है। ये सरकारी यहाँ सफाई कर्मचारी रहते हैं। यस, यहाँ सफाई कर्मचारी रहते हैं। अब ये देखिए कितना इसमें पूरे तौर पर सारी चीज़ को लेके हमारा एकदम मलिन जैसा जीवन होता, वो जीवन हम लोग जी रहे हैं।
जब ये बच्चे पानी भर जाते हैं, ये टूट जाते हैं, बच्चे कहीं कहीं भारे सोते हैं, तो इनको हमें वो होता है एहसास, हमारे बच्चे, हमारा पड़ोस इतना परेशान है। तो हम ये कहते हैं जब भी कोई आता, कुछ सहायता नहीं मिलती हमें गरीब आदमियों को, तो इन्हें सहायता मिले। ये मजदूर आदमी है, कर्मचारी हैं, बेचारे मेहनत करते हैं, तो इन्हें कुछ तो सहायता मिलनी चाहिए ना सरकार की तरफ से। For the 150 families who live in this municipal corporation building, home becomes a private hell. They work all day in gutters, sewages, at homes cleaning garbage, but are helpless in the face of the filth that is adjacent to their bedrooms. And here's the irony: stigmatized by caste for centuries, people in this community say they have no other option except to hope and look for a job as a safai karamchari. मैं चाट का ठेला लगा लूँ, मेरी चाट नहीं बिकेगी। पड़ोसी बताएगा चाट का ठेला लगाने वाला भंगी है। मैं दुकान खोलूँ, मेरी दुकान नहीं चलेगी। ये प्रैक्टिकल सच है। कहो तो कभी भी हम दुकानें लगा के देख लेंगे, हम बता देंगे। और हम अपनी दुकान का नाम लिख दें रामचंद्र जी रामाड़ी की दुकान, तो भी नहीं चलेगी। हम कृष्ण के नाम लिख दें तो भी नहीं चलेगी। कारण हम अछूत इस समाज के, इस सनातन धर्म के समाज के चौथे दर्जे के, चौथे वर्ण के निष्कृष्ट, बिल्कुल ऐसे लोग कि आपका काम मशीनों की तरह काम करना है, सफाई का, कुछ और ना करें, आप सिर्फ सफाई का काम ना करें। These words are not far from the truth. Untouchability, manual scavenging may all be banned, but the same communities that were once confined to these menial tasks are still doing their same caste profession. The only difference now it comes with an official stamp. Coming up from Mumbai, the story of the Conservancy Department of the Mumbai Municipal Corporation.